so today we are going to begin with the lesson number 5, that is inserting objects in MS Word 2010. So, how to insert the objects जो हम कैसे insert करते हैं अपने MS Word 2010 में. So, text styles are valuable features in MS Word for creating decorative text effects including options like shadowed or mirror text effects. हम जो टेक्स्ट स्टाइल होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जो आप डेकोरेट करने के लिए यूज़ होता है आपके टेक्स्ट को टेक्स्ट स्टाइल. सो इसमें क्या इंक्लूड होता है आपका शेडोड एंड मिरर टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं. आपके इंक्लूड करता है ऑप्शंस को. MS Word provides a gallery of text styles known as word art. आपको एक गैलरी प्रोवाइड करता है जिसमें आपके टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं. उस गैलरी को क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट कहते हैं. Within MS Word, you can convert existing text into word art. आप existing text को किस में convert कर सकते हो? अपने MS Word में word art में convert कर सकते हो. Styles define the appearance of text in a document. जो styles होते हैं आपके define करता है appearance आपके text का एक document में. MS Word comes equipped with a variety of default styles. इसमें variety of default styles होती है that can be applied to your text. जो आप apply कर सकते हो अपने text पे. You also have the flexibility to modify the style. आप में flexibility होती है modify करने के लिए अपने styles को fonts, colors और paragraph settings to align with your specific requirement. Text styling can be adjusted in two distinct ways. Two distinct ways में selected होता है आपका text style, character styles and paragraph style. In character style, you can apply changes such as font. आप अप्लाई कर सकते हो चेंजेस फॉन्ट हो गया, कलर साइज हो गया, बॉर्डर्स, अंडरलाइन, बॉर्डर एक्सेट्रा टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. इन पैराग्राफ स्टाइल ऑल चेंजेस आर अप्लाइड टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ. पैराग्राफ सेटिंग्स में क्या होता है, स्टाइल में क्या होता है, सारे आपके चेंजेस आपके पैराग्राफ में हो जाते हैं. वो यू कैन चेंज द अलाइनमेंट. आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो, टैब, स्टॉप्स, लाइन्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर्स ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ. नाउ बिल्ट इन स्टाइल्स. So built-in styles are a combination of formatting characteristics that you can apply to text to quickly change its appearance. आप अपने text में quickly apply कर सकते हो उसकी appearance change करने के लिए. Now to apply an inbuilt style, follow the given step. The very first step you have to follow is you have to click and drag the mouse on the text you want to format to select it. आपको click करना है, drag करना है अपने mouse को select करने के लिए उस text पे जिसको आपको format करना है. Browse through different styles of text in styles groups of home tab. आपको styles group में जाना अपने home tab में. Select any style there to see its preview. आप select कर सकते हो किसी भी style को उसके preview देखने के लिए over the text. Go or you can go to the style group home tab में जाना है आपको. style window पे arrow पे click करना है उसको view करने के लिए आपके inbuilt style में. Select any of the styles and change its appearance to the text. कोई भी style change select कर लो उसकी appearance आपका टेक्स्ट पे आपके चेंज हो जाएगा. ना फॉर्मेटिंग ऑफ अ न्यू स्टाइल. कैसे फॉर्मेट करते हैं न्यू स्टाइल में? MS Word अलाउज द ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टाइल. आपको अलाउ करता है ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए न्यू स्टाइल्स. टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप. क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट टू सिलेक्ट. आप क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने माउस को टेक्स्ट में जो आपको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द स्टाइल विंडो. आपको स्टाइल विंडो को सिलेक्ट करना है स्टाइल्स ग्रुप ऑफ होम में of home tab by clicking the styles button present in lower right corner of the style section. Then you have to click on the new style button. आपको new style button पे click करना है. In style window that appears, a dialog box will appear. The title create new style from formatting. जो आपका dialog box appear होगा आपका टाइटल होगा जैसे क्रिएट करेगा न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग. नाउ टाइप अ टेक्स्ट. आपको टाइप करना है स्टाइल नेम. वहाँ पे प्रेफरेंस में अपने नेम बॉक्स इन द प्रेफरेंस of your preference in the name box. You can also select style type. आप अपना style type भी select कर सकते हो. Style based on and style for following paragraph. You can go do further modification. आप further modifications भी कर सकते हो through various options present in the formatting section. By selecting the new document based on this template option, the new style will become available. आपका new style available हो जाएगा of all documents for you. Now click करना है आपको OK पे. The new style and with assignment name will appear on the list. जो न्यू स्टाइल है assignment name के साथ वो appear हो जाएगा आपकी लिस्ट में. Inserting word art. You can create curved, slanted or three-dimensional text by applying word art style to the given text. Follow the given step to insert a word art object in your document. First you have to do place the cursor where you want to insert word. आपको cursor place करना है जब आपको अपने word art को insert करना है. Then you have to click on the insert tab. आपको insert tab पे click करना है. Third, you have to select the word art from the text group. आपको word art को select करना है अपने text group में से. The different text styles present in word art are called word art style. जो different text styles present है आपके उसमें
उसको हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स कहते हैं। सेलेक्ट करना है आपको स्टाइल फ्रॉम द बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। जब आप क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन एरो पे MS वर्ड विल डिस्प्ले अ टेक्स्ट बॉक्स, आपका जो MS वर्ड होगा डिस्प्ले करेगा आपका टेक्स्ट बॉक्स। एंटर कर for entering the text in the chosen style where the cursor was placed, then type the text and click anywhere। आपको text type करना है, click करना है anywhere on the page। the text that now appears in the document is called word art object। जो text appear होगा उसको हम क्या कहेंगे, like this, ये क्या आपका word art object है। now let's talk about formatting word art। कैसे format करते हैं word art को। The appearance of word art can be changed। जो appearance है word art का वो change हो सकता है आपका insert करने के बाद। To format a word art object, follow the given step। आपको click करना है। The moment you insert the word art style, drawing tools menu appear on the top। जैसा word art style को insert करते हो आपका जो menu है वो appear हो जाता है आपके top पे drawing tools का। Then you have to click on the format। आपको format पे click करना है, format tab पे click करना है। In the drawing tools it will display various editing tools। ये display करेगा बहुत सारे आपके editing tools। You can use these tools to make the desired modification। आप इन tools को use कर सके अपने desired modification कर सकते हो। Now let's talk about changing the text effect। कैसे change करते हैं text effect। The text effect feature of MS Word can give some special effects to the text of word art object। कुछ special effects देता है आपके text में word art object के। फर्स्ट आपको क्लिक करना है वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट पे, द ड्राइंग टूल मेन्यू विल अपीयर। जो ड्राइंग टूल मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना है टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में प्रेजेंटेज होंगे फॉर्मेट टैब में। देन सेलेक्ट करना है आपको डिजायर्ड इफेक्ट्स फ्रॉम द कैटेगरीज, जैसे आपकी शेडो हो गई, कैटेगरी रिफ्लेक्शन हो गई, ग्लो हो गई, बेवल हो गई, आपकी 3D रोटेशन हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। नाउ द टेक्स्ट विल बी चेंज टू द डिजायर्ड स्टाइल। जो आपका टेक्स्ट होगा डिजायर्ड स्टाइल में चेंज हो जाएगा। इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, कैसे इंसर्ट करते हैं। A text box is used to write text in a box। इससे आप write अपना text लिख सकते हो box में। The box can be moved anywhere in the document along with the text box। कहीं भी move कर सकता है text के साथ। For this follow the given step। You have to select the text box। आपको select करना है text box बटन पे। In text box group insert tab, जो insert tab में available है। Now आपको select करना है the draw text box option को फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर। जो मेन्यू अपीयर होगा आपके सामने। अब देन आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने माउस पॉइंटर को क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने का क्लिक करना है, फिर अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग कर देना है। देन यू कैन टाइप योर टेक्स्ट इन द इट। आप अपने बॉक्स के अंदर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। रिसाइजिंग ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन बाय ड्रैगिंग मार्जिन्स। रिसाइजिंग कर सकते हो, बस आपको मार्जिन ड्रैग करनी है उसकी, लाइक दिस, हियर, फ्रॉम हियर और हियर। मार्जिन्स ऑफ द बॉक्स आपको मार्जिन्स बस बॉक्स की चेंज करनी है, उससे आपका टेक्स्ट साइज भी चेंज हो जाएगा। द कर्सर चेंजेस द शेप अलोंग द कॉर्नर एंड मिडल ऑफ द रेक्टेंगल टू help identify the place from where the margins of the text can be dragged। Now let's talk about inserting objects। Objects in MS Word are the different types of shapes from present in MS Word। जो objects होते हैं आपके MS Word में वो क्या होते हैं, different types की shapes होती है जो present होती है आपके MS Word में। These drawings are classified on the basis of their possible uses like flowchart, callouts, etc। तो insert object follow करना है आपको given steps को। First आपको click करना है आपको insert tab में। Then आपको click करना है shape option from the drop down arrow in the illustration group। Then a list of various drawing objects will be displayed। जो list होगी various drawing object की वो display हो जाएगी। From any desired shape can be selected। इससे आप अपनी कोई भी desired shape को select कर सकते हो। Then if a shape is selected, अगर आपकी shape select हो जाती है, the cursor changes to plus sign। जो cursor होगा वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ड्रैग करना है आपको, ड्रॉ करना है डिजायर शेप को और ड्रैग एंड ड्रॉ द डिजायर शेप। अगर आप उसको ड्रैग करोगे आपकी डिजायर शेप ड्रॉ हो जाएगी। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कैसे चेंज करते हैं अपीयरेंस एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट की। यू कैन मेक योर ड्राइंग ऑब्जेक्ट मोर प्रेजेंटेबल एंड फैसिनेटिंग बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शंस इन MS वर्ल्ड। आप अपनी ड्राइंग को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बना सकते हैं MS वर्ल्ड के ऑप्शंस को यूज करके। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड क्लिक करना है आपको अपने फॉर्मेट टैब पे। देन इट अपीयर्स अंडर द ड्राइंग टूल्स मेन्यू। ये कहाँ पे अपीयर होता है, फॉर्मेट टैब ड्राइंग टूल मेन्यू के अंदर अपीयर होता है। देन आपको वेरियस ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड इन द शेप स्टाइल ग्रुप। यूज दिस ऑप्शन टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आपको बहुत सारे ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे, फिर आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है अपने स्टाइल ग्रुप को
चेंज शेप स्टाइल को चेंज करने के लिए। नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट इन शेप ऑब्जेक्ट, कैसे इंसर्ट करते हैं शेप ऑब्जेक्ट्स में टेक्स्ट को? Text can also be inserted in various types of shapes. To specify things in our text, follow the given steps to insert the text in shapes. Select and draw a shape from shape drop down menu in insert tab को select करना है, draw करनी है shape को shape drop down menu में insert tab में, then place करना है अपना cursor किसी भी shape पे, right click करना है उस पे, then choose add text option, आपको एक text option पे click करना है from the menu. The cursor will appear within the shape, जो cursor होगा वो appear हो जाएगा shape के अंदर. You can now start typing, आप यहाँ पे start कर सकते हो typing, like MS Word is word processing software like this. Drawing tools in MS Word. So various drawing tools can be found in shapes. Drawing drop down menu में मिल जाते हैं बहुत सारे drawing tools आपकी shapes में. Through these tools we can draw a number of shapes. इसके थ्रू हम बहुत सारी number of shapes draw कर सकते हैं, जैसे lines हो गई, rectangles, triangles, circles, basic geometrical shapes and different other things like blocks, arrows, flow charts, call out charts and banners, equation shapes etc. बहुत सारी चीजें draw कर सकते हैं. Now let's talk about inserting clip art. कैसे insert करते हैं clip art? Clip art refers to pre-designed images used as illustrations along with text. ये आपकी pre-defined क्या होती है? Pre-designed images होती है जो किसके साथ illustrations के साथ यूज होती है, text के साथ illustration की तरह यूज होती हैं. तो insert clip art, follow the given step. आपको क्लिक करना है insert टैब पे, then आपको क्लिक करना है clip art options in the illustration group. जो clip art option है आपकी illustration group पे, इस पे क्लिक करना है. A clip art pane appears on the right side of the window. एक clip art pane appear हो जाएगा आपकी right side में window पे. Then आपको select type the required clip art name in search box. आपको search box में required clip art का name डालना है. Then you have to click on go button. आपको go button पे click करना है. Over here thumbnail of the available picture will be displayed. जो thumbnail होगा आपके available picture का वो display हो जाएगा. Select the desired clip art. आपको select करना है अपने desired clip art को and it will insert it in the document. वो आपके insert हो जाएगा आपके documents में. Inserting symbols and special characters. So symbols and special characters constitute of spacing, punctuation and typographical characters. में क्या क्या होते हैं? सिम्बल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, टाइपोग्राफिकल आपकी स्पेसिंग होती है, कंस्टिट्यूट ऑफ स्पेसिंग होती है, मतलब पंचुएशन मार्क्स होते हैं इसमें, टाइपोग्राफिकल कैरेक्टर्स होते हैं. दीज आर जनरली नॉट प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड. ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते आपके. सो वी कैन इंसर्ट देम फ्रॉम द सिंबल डायलॉग बॉक्स. हम इसको सिंबल डायलॉग बॉक्स से इंसर्ट कर सकते हैं. फ्रॉम हियर To insert symbol and special character in a document, follow the given step. आपको given steps को follow करना है. First आपको click करना है, first place the cursor to the position where you want to insert a symbol. आपको cursor place करना है कि जहाँ पे आपको अपने symbol को insert करना है वहाँ पे. Now click on the symbol button present in the symbols group on the insert tab. Select the more symbols options. आपको मोर सिंबल ऑप्शंस को अपने इंसर्ट टैब में से सिलेक्ट करना है. देन द सिंबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जो सिंबल का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो गया आपके सामने. नाउ चूज करना है अपना सिंबल एंड क्लिक करना है आपको इंसर्ट बटन पे. फ्रॉम हियर दिस इज द इंसर्ट बटन. टू क्लोज द बॉक्स क्लिक ऑन द कैंसिल बटन. अगर क्लोज करना है तो अपने वर्क कैंसिल बटन पे भी क्लिक कर सकते हो. नाउ let's talk about how to apply shadow. Applying shadow, you can make an object more attractive by adding shadows. आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो शेडोज को ऐड करके. यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजीशन एंड कलर ऑफ द शेडो. आप पोजीशन और कलर चेंज कर सकते हो अपनी शेडो की. टू अप्लाई शेडो टू एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेप बटन प्रेजेंट इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट बटन. आपको ड्रॉ करना है कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट ड्रॉ प्रेजेंट है जो आपकी इलस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट टैब में. नाउ सेलेक्ट करना है आपको शेप को एंड क्लिक करना है आपको शेप इफेक्ट बटन पे, शेप स्टाइल ग्रुप पे ऑन द फॉर्मेट टैब. Now select the desired shadow effect. आपको select करना है desired shadow effect from a list of shadow presets. It will be applied to the object. वो आपके object पर apply हो जाएगी. You can also add shadow effect. आप shadow effect भी add कर सकते हो to text formatted with text effect. Now inserting screenshot. Screenshots कैसे insert करते हैं? Screenshot is an image taken by a user to record the visible items displayed on the monitor. ये क्या होता है जो आप जैसे सपोज ये आपकी displayed item है आपकी डिस्प्ले पे, so इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इससे क्या होता है आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी. एक स्क्रीनशॉट कैन बी टेकन बाय प्रेसिंग प्रिंट स्क्रीन
की कैसे ले सकते हो, प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे जो अवेलेबल है, देन पेस्ट इट ऑन द डिजायर्ड लोकेशन, आप उसको पेस्ट कर सकते हो डिजायर्ड लोकेशन पे Ctrl+V से डायरेक्टली पेस्ट ऑप्शन से, और सेलेक्टिंग पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल बाय द राइट क्लिक द माउस, अब राइट क्लिक करोगे माउस पे जहाँ पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा उस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। तो इंसर्ट स्क्रीनशॉट फॉलो द गिवन स्टेप, फर्स्ट आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, देन क्लिक करना है स्क्रीनशॉट ड्रॉप डाउन एरो जो आपके इलस्ट्रेशन बॉक्स में अवेलेबल है, इस पे क्लिक करना है, देन पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है आपको स्क्रीन क्लिक ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, क्लिपिंग ऑप्शंस, अ ट्रांसपेरेंट हेज कवर्स द स्क्रीन, एक ट्रांसपेरेंट हेज जो होगी कवर कर लेगी आपकी स्क्रीन को, देन क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने माउस को एंड टेक द रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट, इट विल बी प्लेस्ड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, वो कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाएगा आपकी। Do you know theme in MS Word is an option of formatting that can be applied to the entire document, ये एक आपका ऑप्शन है आपकी फॉर्मेटिंग में जो आपके अप्लाई हो जाता है पूरे डॉक्यूमेंट पे। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.